Hello students, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi, subject Principles of Management, subject code 105 in your first year BBA in your semester 1. Now, we have already been completed our unit number 1, that is nature and scope of management, and from today's section we are moving towards our unit number 2, that is planning. Okay, so now we are moving to the another unit, that is planning and decision making. In that, what you are going to learn? In that, you will learn the concept of planning and its definition. Then you will learn the process of planning. Then you will learn the characteristics or the features of planning. Then you will learn the types and the premises of planning, the importance and the limitation of planning. Then you will move towards the decision making, where you will learn the concept, definition, and the process of decision making. And then we will move to individual versus a group decision making. So these are the topic which you are going to be covered in unit number 2, that is planning and decision making. What you are going to learn? The concept of planning, its feature, its process, its types and premises, its importance and limitation. After that, you will move to another concept, that is decision making, uske concept, uske definition and process, and then you will learn what is basic difference between an individual and a group decision making. So that will be covered in your unit number 2. Now, before understanding the definition of a planning, you should know what is meant by planning. It is not wrong to say that any manager activity, कोई भी मैनेजर एक्टिविटी है, इट डज नॉट बिगिन विद प्लानिंग. ठीक है, इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट मैनेजरल एक्टिविटी जो है इट ऑलवेज बिगिन विद अ प्लानिंग. एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हम देखें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन एक्टिविटी व्हेन नो प्लानिंग इज अंडरटेक. ऐसा आप देख सकते हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी एक्टिविटी जो है बिना प्लानिंग अंडरटेक नहीं हुई हो. प्लानिंग इज बीइंग रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ life, every activity we need to make a planning. Planning has become a general rule in economic development, in managing a business unit, and even in managing your family affairs. Plans are prepared in response to such a question as to what to be done, what is to be done, how, where and when it is to be done. प्लान हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग हम क्यों करते हैं? प्लान्स आर बीन प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू सच अ क्वेश्चन लाइक हैज व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ कैसे करना है, वेयर कहाँ पे करना है, एंड व्हेन इट इज टू बी डन, दैट इज द टाइम पीरियड. तो प्लान इज नथिंग बट जब हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है, हाउ वी विल डू, कब करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ प्लानिंग. Because without planning it will have a waste of time, it will have waste of energy. So we can say in absence of planning there can be a waste of time, energy and the resources which will result the business. So business may achieve success, without planning, but it cannot have enough capability to face the crisis, to explore the opportunities. तो जब आपको सक्सेसफुल बनना है तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस. नाउ द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग हैज various authors that we will understand. The first definition according to Henry Ford, that is planning referred to preview of future activity. This definition stress that planning is concerned with future. It draw a image or a picture of future events into a present. In this opinion, planning previews in advance the likely result and determine the beforehand what steps to be taken and what method to be adopted. The planning suggests a provision to be made to face the event by कंसिडरिंग द फ्यूचर अनसर्टेनिटी. हेनरी फॉर्ड ने क्या बोला है कि प्लानिंग रिफर टू प्रीव्यू ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी. उस डेफिनेशन के हिसाब से प्लानिंग को कंसर्न किया है विद द फ्यूचर, प्लानिंग को कंसर्न किया है विद द फ्यूचर एक्टिविटी. प्लानिंग इज drawing a picture or image of future event into a present.
ठीक है, उसके ओपिनियन के हिसाब से प्लानिंग का प्रीव्यू एडवांस में, प्लानिंग प्रीव्यू आर बीइंग डन इन एडवांस, जिससे हमें रिजल्ट डिटरमाइन कर सकते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हो बिफोर हैंड कि कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, कौन से मेथड हमें अडॉप्ट करनी है। वो हेनरी फोर्ड के हिसाब से डिफाइन किया है प्लानिंग। अभी अकॉर्डिंग टू हैजनेस एंड मेसी, उसने क्या दिया है कि प्लानिंग इज दैट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर जहाँ पे उसको डिसाइड करना होता है इन एडवांस कि व्हाट ही विल डू। इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ स्पेशल काइंड जहाँ पे फ्यूचरिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हेंस एंड मेसी ने क्या बोला है कि प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का एक फंक्शन होता है जहाँ पे मैनेजर को डिसाइड करना होता है एडवांस में कि उसको क्या करना है, व्हाट ही विल डू। और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ये पार्ट है जहाँ पे हम फ्यूचर की इम्पोर्टेंस के थ्रू हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी कुन्स एंड ओडोनल ने प्लानिंग को डिफाइन कैसे किया है कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन को कंसिडर करना है और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है, जहाँ पे हमें सारे फैक्ट्स और एस्टिमेट को कंसिडर करके हम डिसीजन को कंसिडर करते हैं, हम कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करते हैं। दैट इज अ डेफिनेशन हैज पर कुन्स एंड ओडोनल। तो डेफिनेशन से हिसाब से हम क्लियर कर सकते हैं प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। द प्रोग्राम आर बीइंग फ्रेम फॉर अ फ्यूचर बेस, जिससे हम हमारा इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर सकते हैं। द डिसीजन जो हम लेते हैं इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द फिगर आफ्टर हैविंग अ केयरफुल थिंकिंग इन सच अ वे that we can achieve the goal of the business. Beside your finding of the course of action, planning is being required to have meet your future uncertainty. Now, the next topic we will learn, that is characteristics of planning. The basic characteristics are same everywhere, but the basic characteristics of planning can be stated as which you are seen in your slide. Now, first one, planning is all pervasive. Now, planning is not concerned with particular department, particular section, and it is not limited to top management, but it is considered by all level of management. It is true that top level management will devote a more time, ठीक है, top management जो होते हैं वो ज्यादा टाइम लेंगे प्लानिंग में rather than the lower level or middle level. But planning is being required at all the level. Planning is being needed at all level. तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस यूनिट, वेदर वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। प्लानिंग इज एसेंशियल नॉट ओनली इन बिजनेस यूनिट बट ऑल्सो इन अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट सच एज एन एजुकेशन और अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। तो प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, मतलब प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एट एवरी बिजनेस यूनिट, वेदर वो स्मॉल हो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। एंड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. If it is required in education also. Second one, that is planning is the primary function of management. Now, planning is a starting point of a managerial function. Hence, we can say it has been regarded as a primary function of management. Proper organization of business is impossible. Organization को आप proper तरह से organize नहीं कर सकते हो if you have not make a plan. ठीक है, तो proper organization of business is impossible if plan is not framed beforehand. अभी नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि स्टाफिंग कब पॉसिबल होगा, जब यू हैव नॉट, हाउ कैन स्टाफिंग कैन बी पॉसिबल व्हेन इट इज नॉट डिसाइडेड कि हु हैज टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, कौन सी जॉब को कौन से बंदे को करना है, तो हाउ कैन स्टाफ बी डायरेक्टेड, हाउ दे कैन बी कंट्रोल। तो स्टाफिंग इम्पॉसिबल है प्लानिंग के बिना। तो प्लानिंग क्या हुआ, प्राइमरी फंक्शन हुआ हर एक मैनेजमेंट का, हर एक मैनेजर का। नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पे ये समझना है कि प्लानिंग इज प्रिसाइड टू ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजर। प्लानिंग से बाद ही आपके अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो भी आपके प्लानिंग के बाद ही प्रोसीड होगा, प्लानिंग के बाद ही प्रिसाइड होगा। नेक्स्ट वन, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली एट स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग करते हो बिजनेस में तभी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट इज ऑल्सो बीन रिक्वायर्ड जब कोई चेंजेस करना
करना है, जब आपको एक्सपांशन करना है, तो प्लानिंग डज नॉट स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग अ 5 ईयर प्लान. ठीक है, प्लानिंग कंटिन्यूज विद द चेंज एंड विद द एडजस्टमेंट इन योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो ऑफ कोर्स वंस अ प्लान इज प्रिपेयर्ड इट्स बेसिक स्ट्रेटेजी मस्ट कैन बी चेंज. ठीक है, प्लान प्रिपेयर होगा, उसकी स्ट्रेटेजी चेंज हो सके, पर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कंटिन्यूस प्रोसेस till the organization exists in the market. Next one is planning is your planning is your conscious activity. प्लानिंग की एम के थ्रू ही आप अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करते हैं. तो प्लानर्स हैव टू टेक इनटू कंसीडर ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. They have to consider whether and how far the suggested program can take the unit into goal with all its effect on its employee. So planning is been considered by considering the result of a particular alternative जो आप लोग select करो. Next one, planning is flexible. Now planning is flexible, that means कि plans can be changed as per the change in your environment, as per the change in your estimate, as per the occurrence of the event. तो plans जो होते हैं, planning जो होते हैं वो flexible होते हैं as per the changing in your environment. Next one, forecasting is the essence of planning. Forecasting जरूरी होता है प्लानिंग करने के लिए, because planning is prepared for future and future है uncertain है, और future uncertain है, उसमें forecasting is required to prepare a plan. So forecasting is a precondition of planning. For any reason प्लानिंग के लिए आपको फोरकास्टिंग करना होगा, उसके बाद आप प्लान कर सकते हो. तो प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर इवेंट एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट ऑन बिजनेस. तो प्लानिंग इज बीन रिक्वायर्ड एंड प्लानिंग इज एन अटेम्प्ट वेयर यू आर planning for your future by forecasting the event of future. Next one, accuracy is essential to planning. We know that जब भी आप प्लान प्रिपेयर करते हो it should be simple and accurate. जितना प्लान प्रिपेयर करोगे वो एक्यूरेसी होनी चाहिए, जिसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लान, टारगेट क्या अचीव करना है, मेथड कौन से यूज करनी है. तो प्लानिंग आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आपको क्लियर कट एक्यूरेसी होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, जैसे प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जैसे कुंट्स एंड ओडोनर ने बोला है कि प्लानिंग इज प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन ऑफ एन एक्टिविटी जो अंडरटेक होने वाली है फ्यूचर में. तो फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर अननोन है, तो प्लानर हैव टू अप्लाई देयर फोरसाइट टू मेक एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर. पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आप अपने फ्यूचर इवेंट को एस्टिमेट करोगे. तो यू नीड टू गो थ्रू टू योर माइंड, यू शुड हैव अ क्लियर थिंकिंग, यू शुड हैव अ डिसीजन मेकिंग क्लियर, यू शुड हैव अ पावर ऑफ इमेजिनेशन, और उसके बाद आपको प्लान प्रिपेयर करना है जो कुंट्स एंड ओडोनर ने बोला है. लास्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस. Planning involves choice among various alternative course of action. If there is only one way of doing something, there is no need of planning. Planning कब रिक्वायर नहीं होगा? जब एक ही चीज को हमें सिलेक्ट करना है. प्लानिंग कब रिक्वायर होता है? जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और उसके में आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, तब आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है. प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस. तो दिस आर द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग एंड दिस आर द डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग फॉर योर यूनिट नंबर 2, that is planning and decision making. Just go through the video and then we will have a detailed explanation in your live section. Thank you students for listening.